और अब दिल्ली से बड़ी खबर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला। जजों की बेंच फैसला पढ़ रही है। एक एक जज अपना अपना फैसला बताएगा। जस्टिस माहेश्वरी, उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया है। यह भी उन्होंने कहा कि यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस माहेश्वरी का यह कहना है। ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण, ये आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके आरक्षण का मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का यह उल्लंघन नहीं करता। इसके अलावा जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने भी आरक्षण को सही करार दिया। जस्टिस माहेश्वरी से उन्होंने सहमति जताई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया गया है उसकी वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि 4 आदेश इसमें पढ़े जाएंगे। Is relevant for today's conditions. The idea of Baba Saheb Ambedkar was to bring social harmony by introducing reservation for only 10 years. However, it has continued past 7 decades. Reservation should not continue for an indefinite period of time so as to become a vested interest. In the result, I hold that the impugned amendment is valid and in no manner alters the basic structure of the Constitution. Thank you. Finally, I invite Justice Ravindra Bhatt to place it. I regret my inability to concur with the views expressed by the majority opinion on the validity of the 103rd Amendment on question number 3, since I feel, for reasons set out elaborately in the following opinion, that this court has for the first time in the seven decades of the Republic sanctioned an avowedly exclusionary and discriminatory principle. Our Constitution does not speak the language of exclusion. In my considered opinion, the amendment by the language of exclusion undermines the fabric of social justice and thereby the basic structure. I am of the opinion that the application of the doctrine of classification, differentiating the poorest segments of societies as one segment, that is the poor beneficiaries of reservation, and the other, the poorest who are subjected to additional disabilities due to caste stigmatization or social barrier-based discrimination, the latter being justifiably kept out of the new reservation benefit, is an exercise in deluding ourselves that those getting social and educational backwardness-based reservations are somehow more fortunate. This classification is plainly contrary to the essence of equal opportunity. If this Constitution means anything, it is that the Code of Articles 15.1, 15.2, 15.4, 16.1, 16.2, and 16.4 are one indivisible whole. This Court has reiterated time and again that Article 16.1 and 16.4 are facets of the same equality principle. That we need Articles 15.4 and 16.4 to achieve equality opportunity guaranteed to all in Articles 15.1 and 16.1 cannot now be undermined through this reasoning to hold that the theory of classification permits exclusion on this very basis. The characterization of including the poor, that is, those who qualify for economic eligibility, among those covered under Articles 15.4 and 16.4 in the new reservations under 15.6 and 16.6 as bestowing double benefit is incorrect. What is described as benefits for those covered under Articles 15.4 and 16.4 by the Union cannot be understood to be a free pass, but as a reparative and compensatory mechanism meant to level the field, whereby
where they are तो सुना आपने, जहां पर जस्टिस माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला देखा जा रहा है कि 5 जजों की बेंच फैसला पढ़ रही है, क्या कुछ इस फैसले के अंतर्गत समाहित है? Stay on the line. तो सुशील से एक बार फिर से संपर्क करेंगे। और आप ये देखें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला 5 जजों की बेंच फैसला पढ़ रही है। जस्टिस माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया। और संवाददाता सुशील से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशील, 5 जजों की बेंच फैसला पढ़ रही है और ये क्या कुछ फैसले के अंतर्गत इस वक्त अभी देखा जा रहा है? फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी? तो सुशील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी आरक्षण को सही करार दिया। जस्टिस माहेश्वरी से सहमति उन्होंने जताई है। 16(1) and 16(2) is that caste-based or community-based exclusion, that is the practice of discrimination, is impermissible. Whichever way one would look at it, the Constitution is intolerant towards discrimination and untouchability in all forms and manifestations. और एक बार फिर से सुशील से बात करेंगे। सुशील, 5 जजों की बेंच फैसला पढ़ रही है, क्या कुछ अभी जानकारी निकल कर आई है? जी देखिए, सालों से केंद्र सरकार के लिए इस पूरे मामले में बड़ी राहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे ईडब्ल्यूएस कोटा में 10% का जो आरक्षण का फैसला था उसको वैध करार दिया है। यानी कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, चीफ जस्टिस यूयू ललित और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने के तीनों जजों का फैसला एक समान है। जस्टिस रविंद्र भट्ट जो फिलहाल इस पूरे मामले में इन तीनों फैसलों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनका फैसला अलग से है। लेकिन फिलहाल इस पूरे फैसले में अब कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत केंद्र सरकार को, यानी कि जो फिलहाल ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% का आरक्षण तमाम लोगों को दिया जा रहा था, वो फिलहाल बना रहेगा। और ये संविधान पीठ की एक बड़ी खबर होगी और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी राहत। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी राहत और एक बड़ी संख्या को भी एक बड़ी राहत होगी। और आज ये जो फैसला है, सभी की सहमति जताई गई है, उससे कहीं ना कहीं खुशखबरी भी बहुत ज्यादा रहेगी। जी देखिए, साफ तौर से केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में गरीब सवर्ण लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि जो फैसला फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, ये संविधान के मूल ढांचे से अलग है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर फैसला सुना रही है। और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। कोटे को वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई और आप ये देखिए कि आज सभी जजों ने इसे वैध करार दिया है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला, 5 जजों की बेंच फैसला पढ़ रही है। जस्टिस माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया। उनका यह कहना है कि ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी आरक्षण को सही करार दिया है। जस्टिस माहेश्वरी से सहमति जताते हुए उन्होंने इसे सही करार दिया है। तो केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी और इसी को लेकर कई सारी याचिकाएं लगाई गई थी और इन याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई कई बार हुई और आज इसका फैसला आया है, जहां पर यह साफ किया गया है कि आरक्षण किसी भी तरीके से गलत नहीं है, इसे वैध करार दिया गया। These institutions, therefore, also constitute material resources of the community, in which the state has a vital interest and are not merely bodies set up to further private objective of their founders, unlike in the case of shareholders of the company. Therefore, I hold that on question number 2, the amendment is valid, but for reasons of answering question number 3, the amendment has to go.
तो आप ये देखिए कि 2019 में लागू किए गए ईडब्ल्यूएस कोटे को सत्तारूढ़ पार्टी Before I डीएमके sum up, समेत I कई wish to address याचिकाकर्ताओं one ने point इसे which the संविधान का majority उल्लंघन has बताते हुए dealt with, चुनौती दी थी। but more as a note of caution, because it is not necessary for me to deal with that aspect, which is the 50% cap. It is pertinent to note that the breach of the 50% limit is the principal ground of attack of the 76th Constitutional Amendment, 1994, which is inserted as entry 257A. The Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Reservation of Seats in Educational Institutions under the State Act 1993. The validity of that enactment and whether the inclusion by the Constitutional Amendment violates the basic structure is directly in issue in a batch of cases pending before this court. The view of the members of this bench constituting a majority that the creation of another class which can be a recipient of up to 10% of reservation over and above 50% permitted under 15.4 or 16.4 in my considered opinion therefore has a direct bearing on the likely outcome in the challenge in that proceeding. I would therefore sound this cautionary note, since this judgment may well seal the fate of the pending litigations without the benefit of hearing in those proceedings. The last reason why I find myself unpersuaded to agree with the opinion that the amendments, by creating a different kind of criteria, have to be viewed separately, and that Indira Sahni was confined to reservations under 15.4 and 16.4, is because permitting the breach of the 50% rule, as it were, through this reasoning becomes a gateway for further infractions, whereby in fact would result in compartmentalization. The rule of reservation could well then become the rule of equality, or the right to equality, could then be easily reduced to the right to reservation, leading us back to the days of Champakam Durai Raja. In this regard, the observations of Ambedkar have to be kept in mind, that reservations are to be seen as temporary and exceptional, or else they could eat up the rule of equality. The fraternal principle, I am now summing up. The fraternal principle is deeply embedded to this nation's ethos and culture. The specific provisions which form part of the Equality Code are inextricably intertwined with fraternity as well. It is fraternity and no other idea which acknowledges that ultimately all individuals are human beings born through the same natural process, subject to the same physical limitations, and finally leave this world at an unknown time but are sure to live. Fraternity is a concept awakens humans जानी चाहिए। चौथा, आखिरकार समानता की व्याख्या क्या है? समानता की व्याख्या यही है कि समाज के हर लोग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उचित हालात में मिले और उनको अपॉर्चुनिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उचित अवसर मिले अपना जीवन व्यापन का। तो इस तरीके से जो नया जो ये 103वां जो अमेंडमेंट था, वो ये अवसर प्रदान करता है इन बदली हुई परिस्थितियों में कि कैसे अपना जीवन व्यापन करने के लिए इंसान के पास अपना मौका हो सकता है। और 7 दिन तक इस पूरे के पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई चलती रही, जिसके बाद but with cooperation and harmony. On this, I want to highlight the words of 2 social reformers, which demonstrate that the principle of fraternity and the ideas and values connected to it are not new, but in fact transcend time. Swami Vivekananda's message in his address to the World Parliament of Religions in Chicago on 11 September 1893 has the theme of universal brotherhood of all, that differences in religion, the exclusion of one of other would fade. He evocatively said, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and destruction of others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension. Aurobindo too was conscious of the need for fraternity. In a speech delivered in Howrah in 1909, he presciently said, again, there is fraternity. It is the last term of the gospel.
It is the most difficult to achieve. Still, it is a thing towards which all religions fall and human aspirations rise. अधिकार और इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी पूरी व्याख्या की है और न्यायाधीशों ने इसका जो है इसका परिभाषित किया है, जजमेंट देते वक्त इन बातों को कहा है। जी An imperfect and limited fulfillment of them. It is the nature, the dharma of humanity, that it should be unwilling to stand alone. Every man seeks the brotherhood of his fellow, and we can only live by fraternity with others. Through all its differences and discords, humanity is striving to become one. Summary of findings in questions 1 and 3. On question 1, it is held that the state's compelling interest to fulfill the objectives set out in the directive principles through special provisions on the basis of economic criteria is legitimate. That reservation or special provisions have so far been provided in favor of historically disadvantaged communities cannot be the basis for contending that other disadvantaged groups who have not been able to progress due to the ill effects of poverty should remain so, and the special provision should not be made by way of affirmative action. Therefore, the special provisions based on objective economic criteria is per se not violative. However, in answer to question 3, I have highlighted the framework within which it has been introduced by the impugned amendment, excluding backward classes. According to me, तो सुना आपने एक महत्वपूर्ण फैसला आज जो बेंच है वो पढ़ रही है और देखा यह जा रहा है कि संवैधानिक पीठ के जो 3 जज हैं उन्होंने एकमत होकर फैसला सुनाया है, सहमति उन्होंने जताई है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए। हितेश जी, किस तरीके से आप देखते हैं ईडब्ल्यूएस 2019 से चला रहा ये पूरा मामला, अब 5 जजों की बेंच जो फैसला पढ़ रही है उसमें 3 जजों की सहमति बन रही है कि ये किसी भी तरीके से बुनियादी ढांचे के, संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो ये सहमति है हम लगभग 4 की मान सकते हैं जी। और उसमें हम इसको यदि लेकर भी चले तो देखिए ये सरकार के फैसलों पर मोहर लगाती है। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी या शिवराज जी यदि कोई फैसला लेते हैं तो विधि सम्मत भी होता है। तो इससे एक इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट पता लगता है कि हाउ सीरियस द गवर्नमेंट इज। वहीं दूसरी ओर यदि आप प्रदेश के संदर्भ में कमलनाथ जी के फैसलों को देखिए तो आज तक सारे फैसले उनके लिटिगेशन में पड़े, उनकी कोई तैयारी नहीं है ना। उन्होंने मुंह खोला, घोषणा करी, उसकी कोई विधिक मान्यता है पूरी करना, प्रक्रिया का पालन करना, उन विधिक सीमाओं के अंदर लाकर उस कार्य को करना, ये सब करने का वो प्रयास ही नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो एक अंतर दिखाई देता है। बाकी हमें तो पता था हमारे फैसले विधि सम्मत हैं, तो हम तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरीके से अब ये साफ हो गया। हालांकि कई सारे दलीलें भी रखी गई थी सुनवाई के दौरान, जहां पर यह भी कहा गया था, यह आरोप लगाया गया था विरोध करते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे का कि पिछले दरवाजे से आरक्षण की मूल अवधारणा को खत्म करने का प्रयास करते हुए, बताते हुए संविधान का उल्लंघन बताया गया था। आज लेकिन जो जजों ने फैसला पढ़ा है उसमें ये साफ किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही कांग्रेस से मानक अग्रवाल जी जुड़ गए। मानक जी, कई सारी दलीलें रखी गई थी और ये भी कहा गया था कि मूल ढांचे का उल्लंघन होगा इस कोटे से, लेकिन अब जजों की जो सुनवाई के दौरान जजों ने जो फैसला सुनाया है उसमें साफ किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक ये आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसको 10% आरक्षण देना एक बहुत बड़ी मदद भी होगी। और सारी चीजों को देखने के बाद में ही फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझता हूँ कि अब इस मामले में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जी, यानी कि आप ये मानते हैं ना कि ये जो फैसला लिया गया था 2019 में,
ईडब्ल्यूएस कोटा जो लाया गया था, ये कहीं ना कहीं एक बहुत मददगार साबित हुआ कई वर्गों को। मददगार तो है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। मैं समझता हूँ कि इसका सबको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल हितेश जी, यहाँ पर कांग्रेस का यही कहना है कि सबको स्वागत करना चाहिए। वो तो पूरी तरीके से सहमति जता रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही तो जाहिर सी बात है कि वो सही ही है। एक बड़ी चतुराई से अग्रवाल साहब ने अपने आप को किनारा किया। पॉलिटिकल लायबिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 50 साल इसकी 70 साल सरकार नहीं, कभी इन्होंने सोचा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी होते हैं अदर देन आरक्षित वर्ग, और उनके बारे में भी सोचा जाए, देश के गरीबों के बारे में जाति से उठकर विचार किया जाए। कभी नहीं सोचा इन्होंने। हमेशा अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा तुष्टीकरण के आधार पर, SC/ST के बारे में वोट बैंक के आधार पर सोचा। इन्होंने कभी ब्राह्मणों को, पाटीदारों को, पटेलों, इनको कभी माने ही नहीं कि ये भी देश के नागरिक हैं जो बेहद गरीब हैं। तो आप सोचिए, एक पॉलिटिकली मेच्योर फैसला था जिस पर विधिक आधार पर भी ये संवैधानिक रूप से मेच्योर फैसला है। इसकी मोहर लगाई है जो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती रही और हमने देश की मुख्य धारा में आरक्षण जैसे गंभीर विषय में भी इनकी भागीदारी सुरक्षित करी कि ईडब्ल्यूएस नाम की भी चीज होती है साहब। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हर जाति में होते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि केवल वोट बैंक के आधार पर फैसले होंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि गरीब वर्ग के लोग हर जाति में होते हैं और अक्सर ये देखा जा रहा था कि जो व्यक्ति काफी धन बल से मजबूत है उसके बावजूद वो SC/ST हो, OBC हो, वो आरक्षण का लाभ ले रहा था। लेकिन यदि सवर्ण वर्ग है, वो गरीब व्यक्ति भी है, तो उसको भी लाभ कहीं से नहीं मिल पा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरक्षण की बात कही थी, जो कोटा लाए थे, वो एक बहुत बड़ी संख्या के लिए मददगार साबित हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट